Good morning to all of you all. Sorry for the delay today. Okay, so in today's lecture, I had planned two types of problems. Okay, we will be doing one type of problem in today's lecture. The second type of problem we'll take it up in the next lecture. Okay. Okay. Yeah. So now let's quickly recall what we have done in the previous lecture. In the previous lecture, we have seen that there are three standard denominators which we would be looking for when it comes to problems where we are finding inverse Laplace transform. The three standard denominators are s plus or minus a, that is, the denominator is of power 1. The second standard denominator is s square plus or minus a square, that is where in the denominator the power of s is 2. And then the third standard denominator is where the power of s is raised to n, other than 1 and 2, any other power that comes in the third category. Okay, so when we have any one of these standard denominators, what we do over here is, yeah, the procedure is we divide separately, use linearity property for inverse Laplace transform, and then we have to use the standard formula. So this is the procedure. Okay. Now here, this was the first thing. Next, previous lecture mein we saw how to solve the problem of inverse Laplace transform when we have a quadratic denominator. Okay, denominator of the form s square plus some a into s plus b. So here what we do is we find out the roots of the denominator. Now suppose the roots of the denominator comes out to be p plus iq or p minus iq. That is, we have got complex roots. In that case, we use completing the square method. Okay, completing the square method के लिए we have to find last term which is obtained by using the formula last term equal to coefficient of s in this quadratic expression upon 2 the whole square. Then we adjust the last term and add and subtract the last term, and then we make it as a complete square, and then we use first shifting property and then solve it. Okay, so this is when the roots of the denominator are complex. Next is quadratic denominator, but then the roots are real. Quadratic hai, so there will be two roots, correct? So here suppose the roots are m and n. So as you can see that the roots are real roots. In that case, the denominator can be factorized using the real roots. So here if m and n are the roots, the factors would be s minus m into s minus n. Then we separate these factors using partial fraction method. So we had seen problems based on this. So basically we had covered up quadratic denominator wala part in the previous lecture. Okay. Now in today's lecture, we will see problems where we are finding inverse Laplace transform where the denominator is cubic. Okay. So let's look at this problem. Here we have to find Laplace inverse of 2s square minus 6s plus 5 upon s cube minus 6s square plus 11s minus 6. Inverse Laplace transform है, so we look at the denominator. We don't look at the numerator first. We focus on the denominator. So denominator is cube here, okay, in cubic in nature. So what we would do here is first we'll find out the roots of this cubic denominator. Again, we can use our calculator in the equation mode to find the roots of this denominator. Okay, so this particular expression, when we feed it in the calculator, I have already done that beforehand. So we get the roots are 1, 2 and 3. So here you can see cubic hai to there will be three roots. So and here all the three roots are real roots. Okay. If we have real roots, then we would factorize the denominator and use partial fraction method. Matlab we'll get
this expression reduced to this standard denominator form. Okay, so what would be the factors here? 1 is one of the root, so corresponding to 1 we'll get the factor s minus 1. Corresponding to 2 we'll get s minus 2. Corresponding to 3 we'll get s minus 3. Okay, so the factor will be s minus 1 into s minus 2 into s minus 3. So we can factorize this denominator using these roots. So we get Laplace inverse of 2s square minus 6s plus 5 upon s minus 1 into s minus 2 into s minus 3. Now again we look at the denominator. Now here in this first bracket s minus 1, this is this particular standard denominator. s minus 2 ये भी ये standard denominator है. s minus 3 ये भी ये standard denominator है. So we have got all these standard denominator, but we don't want them together in the same denominator. इनको denominator के ये factors को separate करना है. तो denominator के factors को separate करने के लिए we use partial fraction. Okay. So let us see now by partial fraction 2s square minus 6s plus 5 upon s minus 1 into s minus 2 into s minus 3 will be equal to a upon s minus 1. So this s minus 1 being a linear factor, linear मतलब यहाँ पर s का power 1 है तो इसका numerator constant रहेगा. So this will be the first term plus b upon the second factor plus c upon the third factor. Okay, तो ये partial fraction method में ये ऐसे separate होगा. Now we have to find the values of a, b and c. अब ये a, b and c find out करने का procedure हमें पता है. Okay, so let us use that. So a equals to, how do we find a? Now here a is the numerator of s minus 1. So we come to the left hand side, delete this factor s minus 1. Whatever is remaining, we write that only, and in that we put s equal to 1. ये factor था s minus 1, तो इसमें हम put करेंगे s equal to 1. Okay, understood the procedure, no? So now let us substitute this. So when you put s equal to 1 here, you get 2 into 1 square minus 6 into 1 plus 5 upon 1 minus 2 into 1 minus 3. This on simplifying 1 square is 1. So this gives us 2 minus 6 plus 5. So 5 plus 2 is 7 minus 6 is 1. And 1 minus 2 is minus 1. 1 minus 3 is minus 2. So minus 1 into minus 2 is 2. So we get half as the value of A. If you don't want to spend so much time, this entire thing you can feed in the calculator, it will give you the answer quickly. Okay, so we get the value of A. Next we have to find the value of B. Now B is the numerator of s minus 2. So to find B, we come to the left hand side, we delete that factor s minus 2 जिसका B is the numerator. So ये B s minus 2 को delete किया. Whatever is remaining, we write that 2s square minus 6s plus 5 upon s minus 1 and s minus into s minus 3. And in that we put s equal to 2. Here we have s minus 2, so we'll put s equal to plus 2. Okay, so let's substitute. This gives us 2 into 2 square minus 6 into 2 plus 5 upon 2 minus 1 into 2 minus 3. This we will simplify. इसका calculation करोगे तो we get the answer as minus 1. So this is 2 square is 4 2s are 8, 8 plus 5 13, 13 minus 6 2s are 12, that is 1, and 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1. So that's how we get minus 1 here. Okay, so we got the value of B as minus 1. Next coming to C. Now C is the numerator of S minus 3. So to find C, we come to the left hand side, delete the factor s minus 3. Whatever is remaining, we write that. And what is remaining here? 2s square minus 6s plus 5 upon s minus 1 into s minus 2. And in that, we put s equal to 3. Okay, so let's substitute. We get 2 into 3 square minus 6 into 3 plus 5 upon 3 minus 1 into 3 minus 2. Now let's simplify this.
3 square is 9. 9 2s are 18 minus 6 3s are 18. So this gets cancelled. We get 5 left in the numerator. 3 minus 1 is 2. 3 minus 2 is 1. So we get this as 5 by 2. Okay. So here calculations are there. In this method, calculations are involved. But you can see that the calculations are simple. Okay. So we got the value of A, B and C. So let us see what we have done now. This was our original question. We have to find Laplace transform of this entire function. The first step what we did was we factorized the denominator using the roots. So we got the roots as s minus 1, s minus 2, s minus 3. Then to separate these roots, we use partial fraction. So that gave us Laplace inverse of this expression by partial fraction is a upon s minus 1 plus b upon s minus 2 plus c upon s minus 3. Then we have also found out the values of A, B and C. We got A as half, B as minus 1 and C as 5 by 2. Okay. So this is what we have done till now. Next what we will do, we will substitute the value of A, B and C here. So when we substitute, we'll get this as Laplace inverse of half into 1 upon S minus 1 प्लस b के जगह पे -1 अपॉन s -2 प्लस c इज 5/2 इंटू 1 अपॉन s -3. ओके. अब आप देखेंगे तो हर एक डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. तो अगर स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है तो डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला. यहाँ पर डिवाइड सेपरेटली is not required, so we directly use linearity property. तो यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज किया तो ये हाफ बाहर आएगा इनटू लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1. यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस ये 5/2 बाहर आएगा, लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3. So this is what we have got after using the linearity property. Up standard formula. So here we have this half. Laplace inverse of 1 upon s minus 1 is e raised to t. So we get half e raised to t minus Laplace inverse of 1 upon s minus 2 is e raised to 2t plus 5/2 Laplace inverse of 1 upon s minus 3 is e raised to 3t, and that becomes a final answer. Okay, did we understand this? ओके, दिस इज लाइक द सेम केस जहाँ पे क्वाड्रेटिक था और सारे रूट्स रियल थे. सेम केस है, यहाँ पर क्यूबिक है, सारे रूट्स रियल है, तो 2 रूट के जगह पे 3 रूट मिलता है. इसके लिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर मिलते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है. ओके, सो इसमें मैंने एक ही प्रॉब्लम लिया है एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. ओके, आपका 11 o'clock को नेक्स्ट लेक्चर है, राइट? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एंड इन केस अगर आपका डिले हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, प्लीज वन ऑफ यू ऑल जस्ट इन्फॉर्म मी. हाँ, माइक्रोफोन को ऑन करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो. ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. Here we have to find Laplace inverse of 5s plus 3 upon s cube plus s square plus 3s minus 5. यहाँ पर लप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो अपना पहला ध्यान कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर क्यूबिक है, तो जैसे क्यूबिक डिनोमिनेटर देखते हैं हम क्या करेंगे? उसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये अपना क्यूबिक डिनोमिनेटर है, इसको हमने कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड में सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये 3 रूट्स मिले. सी द रूट्स हियर आर 1 -1 प्लस 2i -1 माइनस 2i. ओके, तो यहाँ पर रियल रूट्स भी है और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी है. कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा पिछले प्रॉब्लम में किया था. ओके, बट देन वो जो कॉम्प्लेक्स वाला फैक्टर है उसको बाद में आगे सॉल्व करने में वो बहुत टीडियस हो जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई व्हेन इट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स वी डू नॉट गो फॉर फैक्टराइजेशन मेथड. कॉम्प्लेक्स रूट्स रहता है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं. इफ यू रिमेंबर क्वाड्रेटिक पिछले इसमें किया था, कॉम्प्लेक्स रूट रहता है तो वी यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ओके, तो we are going to use partial fraction method as well as completing the square method in this particular problem. ये जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. रियल रूट है मतलब एक डिनोमिनेटर तो इस
स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, और कॉम्प्लेक्स रूट्स है मतलब क्वाड्रेटिक भी डिनोमिनेटर हमारे पास रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? नाउ सी, वी आर गोइंग टू यूज ये वाला जो स्टेप अभी मैं बता रही हूँ आगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, क्योंकि ये वाला स्टेप लाने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी है, डिफरेंट मेथड्स भी है। तो ये एक मेथड है जो दिस आई डोंट नो, आई थॉट इट कुड बी सिंपल, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट। दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं बताऊंगी। सो हियर ये जो रूट है 1, तो ये 1 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा? s माइनस 1। ओके, s माइनस वॉट एवर रूट इज हियर, वो अपना फैक्टर रहता है। यहाँ पर है -1 प्लस 2i, तो इसका फैक्टर है s माइनस ये पूरा रूट -1 प्लस 2i। ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए इस रूट को भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, अदरवाइज साइन का इशू हो जाएगा। ओके, थर्ड रूट इज -1 माइनस 2i, तो इसका फैक्टर आएगा s माइनस ये पूरा रूट, सो s माइनस -1 माइनस 2i। ओके, ये हमारे 3 फैक्टर है। अभी जैसे मैंने बताया ये फैक्टर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व है, इनको बाद में सिंप्लीफाई करना थोड़ा इशू हो जाएगा, बिकॉज दीज आर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में इतना इशू नहीं होता है। न्यूमरेटर में इतना इशू नहीं होता है, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इशू होगा। ओके, सो ये जो दो कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर्स वाले फैक्टर्स है, इनको हमें वी डोंट वांट दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसको कैसे देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ये s माइनस 1 को ऐसे ही रखा, ये वाला ब्रैकेट मैंने ओपन किया, तो दिस बिकम्स s प्लस 1 माइनस 2i, एंड दिस बिकम्स s प्लस 1 प्लस 2i। ओके, अब ये दो ब्रैकेट को अगर आप देखोगे, दिस इज इन द फॉर्म a माइनस बी आई, ए प्लस बी आई। ए के जगह पे s प्लस 1 है, b के जगह पे 2 है। ओके, a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी आई, a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी आई, या फिर a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो विल यूज दैट फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा s माइनस 1, a है s प्लस 1, सो वी गेट s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, ये समझ में आया? Did we understand this here what we have done? Okay, okay, good. अब ये s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास है। ओके, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, ऑल राइट। बट अगर हमने ओपन भी किया, वी ऑलवेज ट्राई टू देन कंप्लीट द स्क्वायर एंड देन उसको फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे इस ब्रैकेट को। ओके, इसको ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, s माइनस 1 इंटू एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दिया, सो वी हैव गॉट दिस एज लैप्लस इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब हमें यहाँ पर ये s माइनस 1 तो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, बट ये s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं है। इसको हम इजीली स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बना सकते हैं। कैसे? अगर ये s प्लस 1 के जगह पे s आ जाए, ओके, ओनली इन प्लेस ऑफ s प्लस 1 इफ वी कैन गेट s, तो ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बन जाएगा, राइट। एंड s प्लस 1 के जगह पर s कैसे लाना है ये भी हमें पता है। ओके, अगर ये s प्लस 1 के जगह पे आपको यहाँ s लाना है, तो बाहर ये समिट फर्स्ट शिफ्टिंग ना। अभी मुझे ये बताओ, s प्लस 1 के जगह पे s सब्सटीट्यूट करना है, तो ये लैप्लस इनवर्स के बाहर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? s प्लस 1 के जगह पे हमें s सब्सटीट्यूट करना है, तो ये लैप्लस इनवर्स के बाहर, एक्सेलेंट अनुजा, e रेज टू माइनस टी। यस अभिनव, ओके ग्रेट। Pradnya, Dheeraj, Aditi, Shubham, all of you are correct. We have to multiply outside by e raised to minus t. तो अब हम सब्सटीट्यूट जब करेंगे
तो सिर्फ ये s+1 को तो नहीं करेंगे ना। ये देखो यहाँ जहां जहां s दिख रहा है वहां पर हमें s+1 के जगह पे s सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो ये वाला जो s है, ये वाला s, यहाँ पर भी एक्चुअली s+1 चाहिए। ये वाला जो s है यहाँ पर भी s+1 चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम s+1 लाते हैं। यहाँ पर फिलहाल s+1 नहीं है, s+1 नहीं है, तो हम s+1 लाते हैं। ओके, बाय एडजस्टिंग। सो दिस गिव्स अस लैप्लस इनवर्स ऑफ 5 इंटू ये s+1 ला दिया। ये +1 को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ -1 आ जाएगा और ये +3 एज इट इज अपॉन ये s है, यहाँ पर हमें s+1 चाहिए, तो ये s+1 है। ये +1 को कॉम्पनसेट करने के लिए ये -1 डाल दिया और ये -1 जो ऑलरेडी है ब्रैकेट में उसको यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर तो ऑलरेडी s+1 है, तो दिस इज एज इट इज। ओके, तो चलो अभी सिर्फ s कहीं पर भी नहीं है, जहां भी है वो s+1 है। ओके, तो मतलब नाउ वी कैन रिप्लेस s+1। देखो कोई s अकेला नहीं है, s+1 है, तो नाउ वी विल रिप्लेस द s+1 इन द एंटायर फंक्शन बाय s। तो बाहर ये e रेज टू माइनस टी से मल्टीप्लाई किया इंटू लैप्लस इनवर्स ऑफ 5 इंटू s-1 प्लस 3 अपॉन s-1 इंटू s स्क्वेयर प्लस 4। ओके, तो ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर दिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट को। सो दिस गिव्स अस e रेज टू माइनस टी लैप्लस इनवर्स ऑफ, when you open the bracket here, 5s minus 5 plus 3 upon this gives us s minus 2 and this is s square plus 4। अभी आपने देखा ये दोनों डिनोमिनेटर जो है हमारे स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर्स है। ओके, ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर हमने और क्या सिंप्लीफाई किया। वी हैव गॉट लैप्लस इनवर्स ऑफ 5s माइनस 5 प्लस 3 इज -2। ओके, सो वो हमने लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर e रेज टू माइनस टी इज देयर। ओके, आई हैव रिटन दैट हियर, यहाँ पर मिस हो गया है। सो दिस इज व्हाट वी गेट, द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म वी गेट। ओके, अब ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दोनों स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, बट ये जो डिनोमिनेटर है, इन डिनोमिनेटर हमें एक साथ नहीं चाहिए। वी वॉन्ट दिस डिनोमिनेटर्स सेपरेटली, करेक्ट। तो इनको ये अगर हमें सेपरेटली चाहिए तो फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर है हमारे पास 5s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4। ओके, तो इसको अब पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम सेपरेट करते हैं, ये जो पहला वाला फैक्टर है ये जब डिनोमिनेटर में आएगा, इसमें s का पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है, तो इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट आएगा। ओके, लेकिन जब ये दूसरा वाला जो है फैक्टर, इट इज एस स्क्वेयर प्लस 4, ये अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका जो न्यूमरेटर है इट विल बी इन द फॉर्म कांस्टेंट इनटू s प्लस कांस्टेंट। ओके, तो a हमने यहाँ यूज कर दिया, तो दिस विल बी bs प्लस c। या वेरी गुड, यस यस मनीष, यू राइट। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ओके, नाउ द थिंग इज हाउ टू फाइंड a, b एंड c। तो a फाइंड आउट करने का तरीका तो हमें पता है, a इज द न्यूमरेटर ऑफ s माइनस 2। तो इस तरह का जब हमारे पास होता है तो वी नो हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट a, करेक्ट। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, a के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a का कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इज द न्यूमरेटर ऑफ s माइनस 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, s माइनस 2 को डिलीट करेंगे, जो बचता है वो लिखेंगे 5s माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और उसमें हम पुट करेंगे s इक्वल टू प्लस 2। यहाँ s माइनस 2 है तो वी विल पुट s इक्वल टू प्लस 2। ओके, तो लेट अस पुट दिस, वी गेट 5 इंटू 2 माइनस 2 upon 2 square plus 4. This is 5 2s are 10 minus 2 is 8. 8 upon 4 plus 4 8. So that gives us 1. ठीक है, तो ये a तो फाइंड आउट किया इस मेथड से। ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल है सिर्फ लीनियर डिनोमिनेटर के लिए। अब
ये b और c कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका न्यूमरेटर तो क्वाड्रेटिक है, ओके। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन इक्वेट द न्यूमरेटर एंड देन इक्वेट न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हो, ओके। सो दैट स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज देयर। वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी डिफरेंट एंड थोड़ा सिंपल प्रोसीजर। उसमें कैलकुलेशंस है, बट कैलकुलेशंस कैन बी डन यूजिंग द कैलकुलेटर। तो इस एक डायरेक्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मेथड हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। तो ये हमारा expression है। what I have done here is I have just put the value of a equal to 1 here। a का जो वैल्यू हमें मिला है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। so we get 5s minus 2 upon s minus 2 into s square plus 4 equal to 1 upon s minus 2 plus bs plus c upon s square plus 4, ये मिला, ओके। अब हमें क्या करना है? we want to find values b and c, दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसमें आप s का कोई भी दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, ओके। एनी टू वैल्यूज ऑफ s, क्योंकि दो कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है ना, b एंड c, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे s के कोई भी दो वैल्यूज। बट s इक्वल टू 2 ये जो है, ये हमने ऑलरेडी सब्सटीट्यूट किया है इस प्रॉब्लम में। ये जो कांस्टेंट 1 वैसे ही आया ना, a इक्वल टू 1 फाइंड आउट करने के लिए s इक्वल टू 2 हमने ऑलरेडी यूज किया है। तो s का कोई भी यूज किया हुआ वैल्यू आपको फिर से यूज नहीं करना है, ओके। सो अदर देन s इक्वल टू 2 आप कोई भी वैल्यू ऑफ s इसमें सब्सटीट्यूट करो। तो द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ s टू स्टार्ट विथ, सबसे सिंपल वैल्यू क्या होगा इसका स्टार्ट करने के लिए? सब है कि सो गए? 0, यस, चलो है ओके। तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगा। तो लेट अस पुट s इक्वल टू 0, ओके। ये पूरे एक्सप्रेशन में मैंने s इक्वल टू 0 डाला, तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 4, ये मिला। इसको सिंप्लीफाई करते, ये न्यूमरेटर क्या मिलेगा? माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर माइनस 2 इंटू 4 दैट इज माइनस 8, तो वी गेट माइनस 2 अपॉन माइनस 8। यहाँ मिलेगा 1 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 1 बाई 2 प्लस यहाँ मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, b इंटू 0 c अपॉन 4, तो वी गेट प्लस c अपॉन 4, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हियर माइनस गेट्स कैंसिल, 2 1s are 2 4s are, so we get 1 by 4। ये माइनस 1 by 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है, तो दिस बिकम्स प्लस 1 by 2 एंड इक्वल टू c by 4। Now 1 by 4 plus 1 by 2, that is 3 by 4. So we get this c by 4 is equal to 3 by 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें c का वैल्यू मिलता है 3। तो देखो ये c का वैल्यू मिल गया, ओके। अब सिर्फ बचा b का वैल्यू। तो 0 हमने यूज कर दिया है, 2 हमने पहले यूज किया है, तो b फाइंड आउट करने के लिए कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं s का। तो नेक्स्ट सिंपलेस्ट वैल्यू क्या रहेगा? 1। वेरी गुड, you all are reading my mind, okay। तो we put s equal to 1, okay। so in this expression ना, ये वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है। देखो अभी 5 माइनस 2 इज 3, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 5, तो ये 3 अपॉन माइनस 5 मिला, इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1, सो वी गेट माइनस 1 हियर। यहाँ b इंटू 1 इज b प्लस c का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था 3, वो सब्सटीट्यूट किया, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 5। तो ये एक्सप्रेशन को अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो देखो अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इज सेम एज माइनस 3 बाई 5 इक्वल टू माइनस 1। इसको अब हम सेपरेट करेंगे तो मिलेगा प्लस b अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, ओके। तो ये माइनस 1 को अब लेफ्ट में लेकर आते हैं और ये 3 बाई 5 को भी लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो वी गेट माइनस 3 बाई 5,
ये -1 लेफ्ट में आएगा तो +1 बनेगा, ये +3/5 लेफ्ट में आएगा तो -3/5 बनेगा। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा b/5। अब ये -3/5 -3/5 इज -6/5, -6/5 +1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b/5 इक्वल टू -1/5। आप या तो डायरेक्ट कैल्सियम में डाल दो या फिर ऐसे भी सिंपल है, देखो -6/5, हाँ करेक्ट, या -6/5 +1 इज -6 + 5/5 विच इज -1/5, तो ये -1/5 हुआ। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल होता है एंड वी गेट b इक्वल टू -1। तो हमारा a, b और c, ओके, ज्यादा इसमें हमने कोई ब्रैकेट ओपन एंड ऑल दो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं किया है, जो सिंपली कैलकुलेशन है। ओके, सो a, b और c मिल गया। तो अब हमारा a, b, c एंड c होने के बाद लेट अस जस्ट हैव अ रिव्यू कि हमने अभी तक किया क्या है। तो हमें फाइंड आउट करना था लप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। डिनोमिनेटर क्यूबिक था तो हमने रूट्स फाइंड आउट करके उसको फैक्टराइज किया। जहां कॉम्प्लेक्स रूट्स था उसको सिंप्लीफाई करके उसको वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हटाया, तो ये हमारे रूट्स मिले। ओके, एंड यू, अच्छा ये हमने सिंप्लीफाई किया था, -5 + 3 वी हैड ऑलरेडी रिटर्न इट एज 2, हाँ यहाँ पर वो 2 ये हो गया है। एंड देन यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन। इस पार्शियल फ्रैक्शन में a, b और c के हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए थे। ओके, यहाँ तक हमने किया है। अब हम a, b और c इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो विल गेट e रेज टू -t लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2 प्लस -1 इंटू s प्लस 3/s²+4। अभी आप देखो ये जो दोनों डिनोमिनेटर है हमारे स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, तो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर आता है तो क्या करना है, डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम डिवाइड सेपरेटली और लीनियरिटी प्रॉपर्टी साथ में यूज करेंगे। तो ये e रेज टू -t वैसे ही रहेगा, लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2। यहाँ पर आप डिवाइड सेपरेटली करोगे तो -s/s²+4 मिलेगा, तो वो माइनस बाहर निकल जाएगा एंड विल गेट लप्लास इनवर्स ऑफ s/s²+4। यहाँ पर +3/s²+4 होगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ s²+4 है, तो यानी s²+2² है, तो न्यूमरेटर में 2 चाहिए, तो हमने साथ में ये 2 को भी एडजस्ट कर लिया है। तो वी गेट 3/2 लप्लास इनवर्स ऑफ 2/s²+4। तो ये डिवाइड सेपरेटली और लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला डालते हैं। सो दिस वुड बी e रेज टू -t, लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2 विल बी e रेज टू 2t minus Laplace inverse of s/s²+4 will be cos 2t plus 3/2 into Laplace inverse of 2/s²+4 is sin 2t। आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन किया तो e रेज टू -t इंटू e रेज टू 2t will give us e रेज टू t minus e रेज टू -t इंटू cos 2t plus 3/2 e रेज टू -t इंटू sin 2t। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये प्रोसीजर समझ में आया? ये थोड़ा भारी प्रोसीजर है। समझ में आया ना? ओके, आई वांटेड टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस, बट वो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। द नेक्स्ट टीचर आई मीन आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, ये वाला आज का जो था ये थोड़ा मे बी हेवी रहा होगा आपको, एंड मे बी आई माइट हैव आल्सो रश्ड अ बिट,